In previous module, we have understood what is ratio. क्यों उसको यूज करते हैं ये भी हमने देखा है. Now in this module, let us understand the classification of ratios. Here we go. Let us understand there are different ratios. So उसका classification एक बार देख लेते हैं. देखो तीन टाइप, broad type है. Balance sheet ratios, income statement ratios and mixed ratios. Mixed ratios को ही आप combined ratios बोल सकते हो. Balance sheet ratio में whatever two items we select, it is from balance sheet. जो भी दो अमाउंट का हमें रेशियो कैलकुलेशन करना है, रिलेशनशिप देखना है, वो सब बैलेंस शीट में ही मिलेगा. ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट रेशियोज में वो दोनों अमाउंट इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, और मिक्स्ड रेशियो में बैलेंस शीट से एक आएगा, एक इनकम स्टेटमेंट से आएगा. सो ये कंबाइंड रेशियो है. सो दीज आर द थ्री ब्रॉडर क्लासिफिकेशन. उसमें इन आर सिलेबस हमें कौन से रेशियो पढ़ने हैं ये देख लेते हैं. बैलेंस शीट रेशियो में करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है. इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. देयर इज वन रेशियो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आल्सो. उसका फॉर्मूला अलग है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अलग है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट, ऑपरेटिंग रेशियो इज डिफरेंट. जस्ट मेकिंग यू अवेयर ताकि आप ये गलती ना करो. And then combined ratio में again two ratios we have: return on capital employed, that is ROCE, and return on investment, ROI. जो शेयर्स में डील करते हैं ना, यूजुअली दे फर्स्ट लुक ROC कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त. ठीक है, धीरे धीरे आपको समझेगा ये कि कैसे ये सब काम करता है. तो दीज आर द रेशियोज वी हैव टू लर्न. For our 12th standard syllabus, there are different n number of ratios we have in all these three categories. But अभी के लिए हमें इतने ratios पढ़ने हैं. ठीक है? So here we go. Let us understand the very first ratio, which is balance sheet ratio. So balance sheet ratio में a ratio of two variables from balance sheet is classified as balance sheet ratio. पहले तो मैंने बता ही दिया है कि दोनों भी variables balance sheet से मिलेगा, दोनों amount balance sheet से मिलेगा. That means it is a ratio which is calculated by using the figures from balance sheet, that is one figure from asset and another figure from liability. For example, ये देखो, a ratio of current assets to current liabilities known as current ratio. एक balance sheet asset से मिला amount, एक balance sheet liability से मिलेगा amount. So ऐसे ratios हमें पता करने हैं. Balance sheet ratio is further divided into two groups. कौन सा दो ग्रुप है? तो एक है current ratio, दूसरा है लिक्विड रेशियो. ठीक है, लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी बोला जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, हम देखेंगे ही. सो करंट रेशियो क्या है पहले देख लेते हैं. इन बैलेंस शीट इट इज द रेशियो एस्टैब्लिश्ड इन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ये रेशियो आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप बताएगा. नाउ करंट एसेट्स मतलब कौन कौन से एसेट्स? सो लेट अस अंडरस्टैंड. In accounting, a current asset is any asset reasonably expected to be sold, consumed or exhausted through the normal operations of business or within a current year. Within a reasonable time हमें बोला है, reasonable time is current year. In that year अगर कोई भी asset हम consume कर लेते हैं, exhaust हो जाता है या sale कर देते हैं, तो that is current asset. ये देखो, completely used up मतलब exhausted. Current assets are those assets which can be converted into cash within a short period that is not exceeding more than 1 year. और एक मीनिंग हो गया करंट एसेट के. ये सब बचपन में किया कि नहीं रे हमने? बचपन मतलब 11th स्टैंडर्ड. ये सब का मीनिंग देखा था हमने. टर्मिनोलॉजीज यही पहला चैप्टर था अपना 11 में, तो उसमें सब मीनिंग ये देखा था. It includes cash and bank balance, sundry debtors, bills receivable, stock or inventories, prepaid expenses, accrued income, disposable investments and marketable investment. Current assets में. ठीक है, अभी marketable मतलब short term investment, within a year जो हम exchange करेंगे वो. अभी current liabilities मतलब क्या? Current liabilities is company's debts or obligations that are due within 1 year. Within 1 year जो payable है, within 1 year वो सब current liabilities. Payable. Current liabilities are those liabilities which are expected to be paid within a year. It includes sundry creditors, bills payable, net of advance tax, bank overdraft, outstanding expense, provision for taxation, income pre-received and short-term loans.
ये सब हमने देखा है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अगर आपको नहीं पता है तो 11 में आपने क्या किया? हाँ, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं व्हाट इज करंट एसेट, मैं पूछता हूँ, बोलते हैं द एसेट्स व्हिच आर नॉट फिक्स्ड एसेट्स आर करंट एसेट्स। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? द लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर करंट। बराबर है, मतलब टेक्निकली तो करेक्ट ही है, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये मीनिंग है, इसके लिए एक बार रिवाइज किया। 11th में पढ़ा था ना, बाप रे बाप सर, हम जेनजी बच्चे हैं, कल का आज भूल जाते हैं, 11 का अभी तक नहीं। नहीं, आप स्मार्ट हो, स्मार्ट हो, बिल्कुल ना नहीं है, पढ़ाई में खाली क्या हो जाता है आई डोंट नो, इसीलिए वापस एक बार रिवाइज करवाना पड़ता है कि बाबा अभी वापस देखो, अभी पढ़ो वापस। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है करंट रेशियो का। चलो, the objective of computing this ratio is measure the ability of the firm to meet its short term liability. short term liability करेक्टली है कि नहीं है, मेरा करंट एसेट्स कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, तो कैन आई मीट दो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये पेमेंट होगा कि नहीं हो पाएगा, ये हम देखते हैं करंट रेशियो में। It indicates the safety margin in between current assets and current liabilities. The safe or standard ratio is 2:1. अगर दो करंट एसेट है तो एक करंट लायबिलिटी होना चाहिए। 2:1 इज द सेफेस्ट रेशो या स्टैंडर्ड रेशो फॉर करंट रेशियोज। ठीक है, मतलब मेरा 10,000 का अगर करंट एसेट है तो 5,000 का करंट लायबिलिटी होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, हर बार ऐसा ही थोड़ी होगा, हर बार 2:1 एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट स्टैंडर्ड 2:1 मिनिमम तो होना चाहिए। उससे कम हुआ तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है लिक्विडिटी के वक्त। Now that means for every current liability of 1 there should be current asset of rupees 2, so that the firm can conveniently meet its current obligations even if the assets like stock or debtors are not quickly realized. क्योंकि हर एक रुपए के पीछे मेरे पास 2 रुपया बैकअप में है, तो उसमें से स्टॉक या डेटर्स अगर रियलाइज नहीं हुआ तो भी 1 रुपया अगर रियलाइज नहीं हुआ तो वो बचा हुआ 1 रुपए में से आई कैन पे द करंट लायबिलिटी, वैसा पार्ट। इसके लिए स्टैंडर्ड रखा है 2:1। Now let us understand quick ratio, that is liquid ratio. Liquid ratio मतलब क्या? It is the ratio which establishes the relationship between quick assets and quick liabilities. Quick asset मतलब क्या? तो quick assets देख लो। Quick assets are those assets which can be converted into cash immediately or within short notice without loss of value of such asset. क्विक एसेट मतलब करंट एसेट का ही पार्ट, क्या जो क्विकली रियलाइज हो सकता है, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ सच एसेट। वैल्यू लॉस कुछ नहीं होगा उसमें। इट इज एक्सप्रेस्ड एज क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज, दैट इज स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिया तो जो बचा वो क्विक एसेट। ठीक है, while calculating quick assets we exclude the inventories at the end and other current assets such as prepaid expense, advance tax etc from current asset. एक नोट देके रखा है आपको, यूजुअली 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस देंगे करंट एसेट्स में, वो माइनस करोगे तो क्विक एसेट मिलेगा। बट ओवरऑल क्विक एसेट कैसे पता करते हैं, तो वी एक्सक्लूड सर्टेन करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स आल्सो। तो ये हो गया अपना क्विक एसेट्स। और क्या बोला है करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी आपको पता है, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। बट फिलहाल 12th पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका करंट लायबिलिटीज पे काम हो रहा है तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है करंट रेशियो के वक्त, व्हाट आर करंट लायबिलिटीज, तो वही सेम सब आएगा। देखो यही पढ़ा ना, अभी वापस क्या पढ़ूं, ये पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। करंट लायबिलिटी बोला है आपको फॉर्मूला में, सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, नॉट क्विक लायबिलिटी। अच्छी बात है ना, अपना काम कम थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो लिक्विड रेशियो, इट इज एन अनदर रेशियो टू टेस्ट लायबिलिटी ऑफ कंसर्न। इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट पता है आपको, बचपन में किया ना, वो लिटमस पेपर लेके और ये कलर बदल गया, हाँ बराबर वैसा ही ये एसिड टेस्ट है, तुरंत पता चलेगा कि अपना लिक्विडिटी कैसा है बिजनेस का। इट इज एक्सप्रेस्ड एज क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये एक्सप्रेशन है इसका।
करंट रेशो क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो क्या है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कॉमन है, खाली करंट के जगह पे करंट एसेट, क्विक के जगह पे क्विक एसेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्विक रेशो में इट इज सेटिस्फैक्टरी इफ इट इज 1:1। करंट रेशो का स्टैंडर्ड पता है क्या? 2:1। क्विक का 1:1, क्योंकि क्विक एसेट्स का बात हो रहा है ना, उसमें हमने स्टॉक और बाकी प्रीपेड अमाउंट्स छोड़ दिया है, तो 1:1। और उसी रीजन से हमने करंट में 2:1 रखा है कि स्टॉक बेचने में तकलीफ हुआ, डेटर से पैसा आने में थोड़ा सा डिले हो गया, तो 2:1 होना चाहिए। यहाँ पे तो क्विक तुरंत, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट होगा, इसके लिए स्टैंडर्ड इज 1:1। A quick ratio 1:1 indicates highly solvent position। अगर आपका 1:1 है क्विक रेशो कंपनी का, तो you're highly solvent, बहुत बढ़िया है। लो रेशो विल बी वेरी रिस्की फॉर द बिजनेस। यही तो सब एनालाइज करना है ना, आप ये समझो बात, ये टूल्स है एनालिसिस का, इससे यही तो सब समझेगा कि आपका बिजनेस रिस्क पे है क्या, या सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट है कि हाईली सॉल्वेंट है, ये सब समझेगा आपको। यही तो एनालिसिस का मजा है। क्विक रेशो सर्व्स एज अ सप्लीमेंट। किसके लिए सप्लीमेंट? एडिशन टू द करंट रेशो इन एनालाइजिंग लिक्विडिटी। करंट रेशो को इन एडिशन सप्लीमेंट करता है वो क्विक रेशो टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अभी के लिए हमने बैलेंस शीट रेशोज के बारे में बात किया ये मॉड्यूल में। देयर आर टू बैलेंस शीट रेशोज, करंट रेशो, क्विक रेशो। दोनों का फॉर्मूला हमने देखा। करंट रेशो का है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो का है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सर आपको ये सब इतना याद कैसे रह रहा है? हमें तो नहीं याद रह रहा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, तो डोंट वरी, नहीं याद रहता है पहले झटके में तो ठीक है, लेकिन 5, 6, 8, 10 बार भी पढ़ के भी याद नहीं रह रहे ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मॉड्यूल वापस देखो, आपको भी याद रहेगा। सम सॉल्व करो, आपको भी याद रहेगा। फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में।